of Department of Hindi, GNDU Amritsar, where he also served as Dean and Director of Chairs of Bhagat Kabir, Sadhguru Ram Singh and Swami Vivekanand. He's also serving as Council Member of ICSSR, MHRD, and Member of National Monitoring Committee on Minority Education. Apart from several regional awards and honors, he was awarded Award of Hindi Sevi Puraskar by the President of India in 2017 and Shiromani Hindi Sahityakar in the year 2004 by Punjab government for his substantial contribution to the field of Hindi language. He has also served as Hindi advisor to the Ministry of Labour and Employment and Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. He has also been on the panel of National Language Council, Government of India, for preparing draft of the National Education Policy. He has written and edited over 30 books and has published on all major national journals of Hindi. A poet at heart and a powerful orator, his irresistible charm mesmerizes one and all. He has also written a book on the philosophy of Sri Aurobindo ji titled Mahan Darshanik Aurobindo. He is the only author having written a book on the philosophy of Sri Aurobindo ji in Punjabi language. So we are really, really privileged to have you here, sir, with us to enlighten us with your wisdom. So I welcome you, sir, on behalf of college management. We have also with us our keynote speaker, Dr. Nandita Singh, Professor, Department of Education, Dean International Students, Coordinator, Interdisciplinary Center for Swami Vivekanand Studies, Punjab University. She is former Senate and Syndicate member and part of various important committees of Punjab University, UGC, and various other national bodies of higher education. She has a rich teaching experience of 33 years and guided various PhD scholars on the philosophy of Swami Vivekanand and Sri Aurobindo. She has been awarded Vidya Shri for valuable contribution to the society and professional commitment by Readers and Writers Society of India. She was awarded on International Women's Day in the year 2014 for her contribution to the society. There's a long list of awards and other achievements to her credit, and if I read all that, it will take the whole session. So I think I will have to brief it up and not take much of the time in this. So I welcome you, ma'am, on behalf of the faculty, students, and the college management. We are really privileged to have you here, ma'am. Now I request Dr. Mrinal Gupta, officiating principal of the college, to formally welcome the guest. Thank you, Dr. Manpreet. Professor Harmohinder Singh Bedi ji, Honorable Chancellor, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala. Dr. Nandita Singh, who is coordinator of the Interdisciplinary Center for Swami Vivekanand Studies, Punjab University, Chandigarh. Dr. Nirmal Jora, who is the director of Youth Welfare Department of the university. My fellow colleagues and my dear students. It's a matter of great joy and pride for Aurobindo College that we, in collaboration with the Youth Welfare Department of our university, we are going to celebrate 75th year of Indian independence and 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. Dear students, let me share with you that Sri Aurobindo ji was such a visionary that almost a century back, he laid down few principles of integral education. And the college where you belong to, that college is already following the philosophy of Sri Aurobindo. So in those three principles which are laid down by Sri Aurobindo Ghosh, he said that one, nothing can be taught. So a teacher can perform the role of only a facilitator. We cannot spoon feed you. So that is the important role of a teacher. Secondly, he said that minds need to be consulted in its own growth. And thirdly, the most important one is to work from near to far, which means that whatever you do, you should decide whatever you are going to do in alignment with your vision or in alignment with the objective or the journey that you want to have in future. So recognizing the relevance of these three principles which were laid down by Sri Aurobindo, Padam Bhushan awardee Shri S.P. Oswal ji, who himself is a true devotee of Sri Aurobindo, he established this college in the year 2004.
And I'm very happy to share with you all that at our college, all the policies, all the processes, all the activities, they are in alignment with these three principles only. And here we focus on the holistic development of the students. So focus is not only on the academic development, academic growth of the students, rather we try to develop all the four faculties of the mind about which Shri Aurobindo ji has talked a lot. So, as you know that this year we will be celebrating 150th birth anniversary of Shri Aurobindo. So, this is going to be a great year in the history of this college also, because we have planned so many activities, maybe relating to the, you can say, literary events, or organizing fine arts competitions, workshops, visits to Shri Aurobindo Ashram, Pondicherry, Delhi, Nainital, planning so many camps for the youth, maybe study camps or adventure camps. Whatever we will be doing, so we will be having the theme. And the theme for this 150th birth anniversary celebrations is Shri Aurobindo, the Life Divine. So so from today, so we will be starting the celebrations. So now, on behalf of the college management, faculty and the students, I welcome you, sir and madam, and we are much honored to have you with us. And I feel in the future also we are going to have very fruitful sessions and association with you. Thank you, ma'am and sir, for being part of this celebration with us. Thank you so much. Thank you so much, Pranal ma'am. So now, proceeding with the session, I would request Professor H.S. Bedi to deliver inaugural address. सर आपकी यू आर नॉट ऑडिबल, आप म्यूट है आपका. नहीं अभी भी. Sir, on the screen there is an option, you have to unmute yourself. सर देखना. ओके, सो इन द मीन वाइल जब तक प्रोफेसर बेदी हमें ज्वाइन करते हैं, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद द स्टूडेंट्स that just almost 10 days back we started with the celebration. Actually we had to plan an NSS camp. So for the students we had planned 1 week long NSS camp, and the theme was again the Shri Aurobindo, the Life Divine. And the students have done so much of work in the adopted villages. Actually college has adopted few villages, so they used to go there, and they organize some camps also. So we are looking forward to that. So now sir has joined. So over to you, sir. Hanji sir. We are quite eager to listen to you. जी sir. आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, महर्षि अरबिंदो के नाम से जाना जाता यह कॉलेज, मुझे लगता है कि कम से कम उत्तरी भारत में ये पहला कॉलेज है जो अरबिंदो घोष के नाम पर जिसका नामकरण हुआ। आज एशिया के देशों में जिस दार्शनिक को लेकर पिछले 50 वर्षों से चर्चा, विचार विमर्श, चिंतन, मनन, मंथन हो रहा है, वह अरबिंदो घोष है। एशिया के देशों के बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने, मनोविज्ञानियों ने, इतिहासकारों ने अपने अध्ययन के केंद्र में अरविंद जी की फिलॉसफी को रखकर वे
भारतीय चिंतन की नई दिशाओं की ओर अग्रसर हुए हैं। मेरे सामने प्रोफेसर एलन है। प्रोफेसर एलन ने एशिया के देशों का इतिहास लिखा, एक पूरा खंड भारत पर केंद्रित किया और उस खंड में भारतीय दर्शन और विशेषकर अरविंद घोष के दर्शन पर लंबी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1950 के बाद अगर किसी एक दार्शनिक ने एशिया के देशों के चिंतन को प्रभावित किया है तो वह अरविंद दर्शन है। इसलिए पहला जो संवाद, दार्शनिक संवाद भारत के साथ पिछले 50 वर्षों में, 75 वर्षों में जिसकी एक गतिशीलता है, कंटिन्यूटी है, वह अरविंद घोष के चिंतन के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय इतिहास और भारतीय समाज शास्त्र को प्रभावित कर रही है। इसलिए अरविंद घोष जी को अपनी स्मृति में लाने का अर्थ है कि भारतवर्ष के उन 75 वर्षों को, भारतवर्ष की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को अपनी स्मृति में लेकर आना। और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि 7 वर्ष की आयु में अरबिंदो इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने बड़ी बारीकी से भारतीयों के जन्म को विदेश में देखा। वे पूरी तरह से पश्चिम के रंग में रंगे भारत लौटे, पर उनके सामने भारत की संस्कृति, भारत की जनता, भारत का दुख दर्द और भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रारंभिक प्रयास थे। और अरविंद घोष, चाहे बड़ौदा में उन्होंने कुछ देर काम किया, पर बार बार उनके चिंतन में 3 बातें आती रही और उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि मुझे पूरा हक है कि मैं भारत से प्यार कर सकूं, प्रेम कर सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पास जितनी धन दौलत, जितने साधन हैं, मैं उसका अपने लिए सदुपयोग करूं और भारत के उन वंचित लोगों के प्रति एक संवेदना अपने मन में रखकर इन साधनों को उन लोगों को समर्पित करूं। और तीसरी बड़ी बात यह थी कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, भारतवर्ष का जो चिंतन है, भारतीय जो भाषाएं हैं, मैं उनका केवल अवलोकन ना करूं बल्कि उनकी गहराई में उतरकर अपने सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से पूरे राष्ट्र में एक पुनर्चेतना पैदा करूं। ये 3 बातें उन्होंने अपने संस्मरणों में, अपने पुस्तकों में बहुत खुलकर लिखी है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि बम कांड में पकड़े गए और जब पकड़े गए वो इनके लिए बड़ा सुनहरी मौका था। मुझे टी.एस. इलियट की बात याद आती है। टी.एस. इलियट ने कहा कि अगर युग में, वर्तमान युग में, जिस युग में टी.एस. इलियट कहता है मैं जी रहा हूं, अगर मुझे भारत के दर्शन को समझना है तो मेरे पास अरविंद घोष का 2 किताबें मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक उनका सावित्री नाटक, महाकाव्य, और दूसरा मेरे लिए ऑन एजुकेशन पे जो उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। तो टी.एस. इलियट अपने निबंधों में लिखते हैं कि अरबिंदो की देन पश्चिमी चिंतन को एक नए धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है, जिसमें भारतीय चिंतन की एक नई इंटरप्रिटेशन छुपी हुई है। ये जो नई इंटरप्रिटेशन थी, ये अरविंद घोष के लिए उनका एक अद्भुत, एक विलक्षण, उनका एक साहित्यिक, सांस्कृतिक, चिंतन, दार्शनिक संसार था। आज तक पश्चिम में, अगर पश्चिम में एक धारणा चल रही थी
वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, पुराणों के प्रति, रामायण के प्रति, महाभारत के प्रति। वो लोग ये तो कहते थे कि ये बड़ा महान साहित्य है, महान वाग्मय है, पर उसके साथ किंतु परंतु इस तरह से लगाते थे कि ये व्यवहारक जीवन दर्शन नहीं है। और बार बार वो कहते थे कि इस साहित्य में से मिथ को अगर हम खारिज करें तब कोई बात समझ आ सकती है। अरविंदो जी ने सबसे पहला व्यवहारक जीवन दर्शन, वेदों में जो कुछ था उनका एक व्यवहारिक पक्ष, एक प्रयोग के रूप में उन्हें पूरे पश्चिम जगत के सामने रखा। और जब वेदों की उक्तियों को, वैदिक चिंतन को, उपनिषदों में जो वेदों के रूपक थे, उपनिषदों में जब अरविंद जी ने खोले तो भारतीय वांग्मय का, भारतीय दर्शन का एक नए युग का उदय हुआ। ये जो नया युग है, ये जो नई चिंतन धारा थी भारतीय दर्शन की, इस चिंतन धारा ने भारतीय दर्शन के प्रति पाश्चात्य जगत की दृष्टि बदल कर रख दी। और उस समय के जितने बड़े बड़े दार्शनिक, समाजशास्त्री थे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग पश्चिमी चिंतन में अरविंद का दर्शन केंद्र में आ जाता है। अभी आप देखिए कि इंडियन फिलॉसफी के ऊपर इंग्लैंड में 2 विश्वविद्यालय हैं और दोनों विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन पर श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अनिवार्य है। और उसके ऊपर जो एक कमेंट्री, उसकी व्याख्या, उसका भाष्य, उसका परमार्थ वाली जो किताब है वो अरविंद घोष की गीता के ऊपर लिखी हुई कमेंट्री है। तो वहां ये निष्कर्ष निकले हैं कि अगर वर्तमान युग में भारतीय चिंतन को, भारतीय दर्शन को समझना है तो फिर अरविंद घोष की जीवन दृष्टि, अरविंद घोष का व्यवहारक जीवन दर्शन और अरविंद घोष का श्रीमद् भगवत गीता पर की गई जो व्याख्या है, की गई जो मंथन है, उस मंथन के माध्यम से भारतीय दर्शन को सहज रूप में समझा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज यूएनओ, एशिया के देशों की बात छोड़ो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब दुनिया की विरासत की पुस्तकों को चुना वर्ल्ड हेरिटेज में, तो उन्होंने गीता को उसमें चुनाव किया और उसकी कमेंट्री में लिखा कि गीता के ऊपर अरविंद घोष का जो चिंतन है, उस चिंतन के माध्यम से गीता की फिलॉसफी को वैश्विक चिंतन का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये अरविंद घोष का श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन धारा को पूरे विश्व स्तर पर ले जाने का एक बड़ा बृहद प्रयास है। दूसरी बात आप देखिए कि पूरी दुनिया में भारतीय फिलॉसफी गीता के ऊपर 3 लोगों का, किताबों का, 3 ग्रंथों को मान्यता प्राप्त है। बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य और राधा कृष्ण का गीता के ऊपर कमेंट्री जो हमारे राष्ट्रपति रहे, और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक अरविंद की। और अभी जो यूएनओ ने भारतीय दर्शन की किताबों की एक लिस्ट तैयार की है, सूची तैयार की है कि वर्ल्ड हेरिटेज की चिंतन धारा को आगे ले जाने में किन किताबों का बहुत बड़ी भूमिका है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण गीता रहस्य और श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर की गई कमेंट्री अरविंद जी की, वो दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज फिलॉसफी में मानी जाती है। तो अरविंद घोष पहले हमारे चिंतक और दार्शनिक हैं जो भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय वांग्मय और भारतीय साहित्य के मूल स्रोतों की एक नई इंटरप्रिटेशन दुनिया के दार्शनिकों के सामने रखते हैं। मुझे लगता है
कि वर्तमान समय में ये एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता भारतीय संस्कृति की अरविंद घोष के ग्रंथों के माध्यम से पूरे विश्व के सामने गई। और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में गीता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गीता ने भी भारतीय स्वतंत्रता में उसी तरह से अपना योगदान दिया जिस तरह से बहुत बड़ा जन समूह योगदान दे रहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पांडिचेरी के आश्रम में गए तो पत्रकारों ने पूछा कि आप 2-3 बार यहां आ चुके हैं, कोई पते की बात बताए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पते की बात यह है कि हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का पांडिचेरी भी एक बहुत बड़ा दिव्य स्मारक है जहां मैं बार बार प्रणाम करने आता हूं। और पंडित जी ने कहा कि मैं अरविंद घोष के भारतीय संस्कृति का एक ही अध्याय मैंने गीता में अध्ययन किया है। मुझे लगा कि इससे बड़ा दार्शनिक आधुनिक काल में, वर्तमान काल में स्वतंत्र भारत के पास और कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहां पर नतमस्तक होने आता हूं। ये इतने बड़े दार्शनिक, इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और किस तरह से पूरी वैश्विक चिंतन धारा को वे प्रभावित करते हैं। अरविंद घोष जी को उत्तर योगी कहा जाता है। वहां तमिल के ऋषि ने, जो उस आश्रम के बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद 30 साल बाद उत्तर से एक योगी आएगा। वह योगी योग को केंद्र में रखकर भारतीय दर्शन की व्याख्या करेगा और वो योगी फिर यहां से लौटेगा नहीं। इसी धरती के ऊपर वह अपना वर्चस्व, अपना चिंतन और अपनी मान मर्यादा को छोड़ेगा। आप देखिए, अरविंद जी वहां गए, रात का समय था, उस योगी से मिले और सुबह वे संसार को छोड़ गए। अरविंद जी के माता पिता आए वापस लेने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, अब बात खत्म हो गई, मेरी कोई विद्या, मेरी कोई एजुकेशन, मेरी कोई क्वालिफिकेशन मेरी नहीं है, अब मैं पूरी तरह से इस आश्रम को समर्पित हूं। वो कहता कि मेरी वही नियति थी, मेरी कोई प्रतीक्षा कर रहा था। और जब बहुत जोर डाला गया तो उन्होंने कहा कि भारत माता, मेरा राष्ट्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि मैं एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी आंखों से देख सकूं और दूसरी तरफ भारत की विरासत को दुनिया के सामने रख सकूं। ये संवाद उन्होंने अपने वंशज से, अपने माता पिता से किया। और अरविंद घोष फिर वापस अपने घर की ओर नहीं गए, उसी मिट्टी में भारत का महान दार्शनिक। और आज अभी आपके प्रिंसिपल महोदय कह रहे थे कि हमने टूर लेकर गए। अब वहां का एक एक कण देखिए, वहां का परिवेश देखिए, वहां का समाधि स्थल देखिए, वहां लोगों का बैठना उठना, चिंतन, उनका चलना फिरना, सब कुछ अरविंदमय है। वहां आपको हर जितने भी वृक्ष हैं, आपको लगेगा कि अरविंद घोष यहां पर बैठे हुए हैं। ये उस व्यक्ति की उपस्थिति जाने के बाद, बल्कि वो प्लेटो, एरिस्टोटल अपने एक संवाद में कहते हैं कि दर्शन की उपस्थिति में से व्यक्ति चले जाता है, पर दर्शन की अवधारणाएं उस व्यक्ति क्या निराकार चिंतन को वो पूरे ग्रंथों के बीच जीवित रखती है। अरविंद घोष के साथ यही सब कुछ हुआ। और एक मुझे प्रसंग याद आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनका योगदान देखिए। आज हम राष्ट्रीय स्तर पर 75वीं वर्षगांठ आजादी की मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 150 वर्ष उस महर्षि का जन्म उत्सव मनाने का दिन प्रारंभ हो गया है। इसके बीच आप देखिए
पंजाबी के एक बहुत बड़े लेखक है प्रोफेसर पूरन सिंह, हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक है अगे। ये दोनों, अगे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के साथी थे। और जब भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में एक बम का विस्फोट दरिया के किनारे किया, उस बम की जो संरचना थी, उस संरचना को उन्होंने अरविंद घोष के एक पत्र में से समझा। प्रोफेसर पूरन सिंह ने उस पत्र का हवाला भी दिया कि किस तरह से अरविंद घोष नए नए वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा देश की आजादी में एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे थे। अरविंद घोष के पत्रों में देश की आजादी का पूरा इतिहास जीवित है। अपनी पत्नी को लिखे गए पत्रों में भी आप देखिए, अन्य लोगों को लिखे गए पत्रों में देखिए, अपने बड़े बड़े जो उन्होंने विदेशों में दार्शनिकों के साथ संवाद किया, उसमें पूरे का पूरा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कई कड़ियां हैं। इसलिए स्वतंत्रता के इस 75वीं वर्षगांठ के ऊपर स्वामी बहुत बड़े दार्शनिक अरविंद जी को अपनी स्मृति में लाने का अर्थ है भारत के इतिहास के ऊपर पुनर्विचार करना, भारतीय संस्कृति के प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को वर्तमान संदर्भ में समझने की कोशिश करना। एशिया के देश तो आज मानने लगे हैं अपनी किताबों में कि 21वीं शताब्दी में अगर किसी बहुत बड़े दार्शनिक के चिंतन का एक कल्चरल आइडेंटिफिकेशन एशिया के देशों के साथ जुड़ेगी तो वे अरविंद घोष का चिंतन होगा। अरविंद ने सुपरमैन की जो अवधारणा दी, आज एशिया के देशों में जो महापुरुष एक सुपरमैन की जो एक इंटरप्रिटेशन हो रही है, उसमें अरविंद घोष का चिंतन उसकी ताकत बना हुआ है, उसकी शक्ति बना हुआ है। और बार बार एशिया के देशों में भारतीय चिंतन धारा को अरविंद के माध्यम से समझने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि वर्तमान संदर्भ में एशिया के देशों में वैश्विक स्तर पर भी अरविंद घोष के दर्शन की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। दो बातें मैं आपके साथ और साझी करना चाहता हूं कि अरविंद घोष भारतीय चिंतकों से बहुत प्रभावित थे और खास करके स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस का जो रहस्यमय गूढ़तम चिंतन था, उस चिंतन की इकाइयों को प्रकाश में लाने का श्रेय अरविंद घोष को जाता है। जो उपनिषदों वेदों के गूढ़तम रहस्य थे, जिनकी बार बार स्वामी गुरु विवेकानंद के गुरु चर्चा करते थे, रामकृष्ण परमहंस की, उनकी उक्तियों के ऊपर बहुत बड़े बड़ी दार्शनिक व्याख्याएं हमें अरविंद घोष में से मिलती हैं। और इसलिए आप देखिए कि बर्टन रसल ने कहा था कि ये जो दूसरा पुनर्जागरण है एशिया के देशों में, जो सेकंड रेनेसां आया है इंडियन कॉन्टिनेंट में, तो बर्टन रसल कहते हैं उसके पीछे स्वामी विवेकानंद है, उसके पीछे रामकृष्ण परमहंस है और उसके पीछे अरविंद घोष है। हमारे जितने समाजशास्त्री है, चिंतक है, साहित्य शास्त्री है, उन सबको अरविंद घोष की इस भूमिका को रेखांकित करना चाहिए। हिंदी के बहुत बड़े कवि है महाकवि निराला, तो निराला तो बार बार कहते थे कि जितना छायावाद जो दो विश्व युद्धों के बीच की जो भारतीय कविता है, उस भारतीय कविता में अगर कोई बहुत बड़ा महाचिंतन
अगर किसी महापुरुष का छुपा हुआ है तो वे अरविंद घोष हैं। प्राणायाम करते थे, प्राणायाम से 200 पंक्तियां एक ही सांस में अरविंद घोष लिख लेते थे। आप देखिए कि उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर कैसे कैसे प्रयोग किए और दुनिया के सामने रखा कि जो वेद उपनिषद, जो योग का दर्शन है, ये खाली कोरी कल्पनाएं नहीं है, ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक चिंतन और दर्शन है जिसे आने वाली शताब्दी को, दुनिया के लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आज योग दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, योग की घर घर में चर्चा होती है। पतंजलि के बाद अगर किसी व्यक्ति ने योग की क्रियाओं के ऊपर, योग की चिंतन के ऊपर, योग के प्रयोगों के ऊपर अगर खुद कोई एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो चिंतन और दर्शन दुनिया के सामने रखा है, तो वो महर्षि अरविंद घोष है। इसलिए योग की जितनी नई नई इंटरप्रिटेशन पश्चिमी जगत में हो रही है, पतंजलि के बाद अरविंद घोष को उद्धृत किया जाता है। और जब यूएनओ ने योग दिवस घोषित करना था तो यूएनओ के अधिकारियों ने पतंजलि भी पढ़ा और अरविंद घोष भी पढ़ा। ये अरविंद घोष का भारतीय संस्कृति को, भारतीय चिंतन को, भारतीय दर्शन को, भारतीय अध्यात्म को व्यवहारिक पक्ष उन्होंने दुनिया के सामने रखा। पुराण, उपनिषद, वेद, वेद के कितने रहस्य हैं, उपनिषदों की शैली में कितना कुछ छुपा हुआ है, पुराणों के बीच किस तरह का पूरे विश्व कल्याण का संदेश है, इन सारी बातों को अरविंद घोष ने दर्शन के साथ जोड़कर एक गंभीर संवाद बनाकर और बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी के माध्यम से दुनिया के फिलोसफरों के सामने रखा। और पूरे का पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो पूरा का पूरा जाग उठे। और आज जो सार्क देशों की जो बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, सार्क देशों के साहित्य की बात होती है, तो उसमें अगर कोई बहुत बड़ा भारतीय चिंतक Sir, I think you are not audible. I think his connection is lost because the picture is still. Yes, ma'am, I suppose. I think we should wait for a few seconds, and otherwise we can proceed with this other guest. You can give him a call and tell him we can, if it is not possible on the laptop, he can proceed on the phone, you know, at least he'll be audible then. He can proceed on his phone so that he's audible and he can finish because it was a wonderful discourse. Yes, ma'am. Yes, Nathaniel, ma'am. कर रहा हूँ try. मनप्रीत मैम, सर का ही कॉल था, आई थिंक वहाँ पे ना पार कट है, तो ही इज रीजॉइनिंग, लेट्स वेट फॉर अ मिनट.
Manpreet ma'am, I think he's not able to connect. Sir is not able to connect, I feel. Let me just give him a call and then I'll let you know. Otherwise, we will proceed. Sir is joining. I think he'll take just 1 minute, and he said he will join, and then we will proceed. Issue है, took something. ओके मनप्रीत मैम, मुझे लग रहा है अभी भी टाइम लग रहा है उनको, तो आई थिंक वी शुड प्रोसीड विद द इवेंट. Yeah, sure, ma'am. So I think we should look forward to our keynote speaker of the day. Ma'am, I think He has joined. Sir has joined. Yes, sir has joined. सर आप म्यूट हैं. एक बिंदु और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय वांग्मय पर, इंडियन लिटरेचर पर, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी सर, ऑडिबल है. देखिए, ऑडिबल है सर. भारतीय वांग्मय पर खास करके 1950 के बाद ये जो 70 वर्ष हैं, भारतीय जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाओं को
संविधान में मान्यता प्राप्त है, 2 पाइपलाइन में है, तो 22 भारतीय भाषाओं का जो आधुनिक दार्शनिक चिंतन स्रोत है वह है अरविंद घोष के जो 35 खंड छपे हैं। खंडों के प्रभाव के अधीन बहुत कुछ भारतीय वाङ्मय में लिखा जा रहा है। हिंदी में, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं इसलिए मुझे पता है कि हिंदी में अरविंद घोष की विचारधारा को केंद्र में रखकर लगभग 2 दर्जन उपन्यास लिखे गए। अरविंद घोष की विचारधारा को केंद्र में रखकर हिंदी में 12 महाकाव्य। अरविंद घोष की जीवनी को केंद्र में रखकर हिंदी में 3 खंड काव्य लिखे गए। अरविंद घोष की सावित्री के चिंतन को केंद्र में रखकर उसकी व्याख्या के ऊपर 2 ग्रंथ लिखे गए और अरविंद घोष की जीवनी के ऊपर लगभग 20 के करीब हमें उनकी जीवनी परक रचनाएं मिलती हैं। तो दक्षिण में, बंगला में, तमिल में और यहाँ तक कि मैडम नंदिता दास जी बैठी हैं, तो एक छोटी सी भाषा है जो गोवा में बोली जाती है, कोंकणी। कोंकणी जबान में भी अरविंद की कविताओं का अनुवाद हुआ है। भारतीय साहित्य अकादमी ने अरविंद घोष की कविताओं का भारतीय जबानों में अनुवाद किया है ताकि आधुनिक, वर्तमान, अद्यतन, समकालीन भारतीय वाङ्मय किस तरह से अरविंद घोष के चिंतन से प्रभावित, उसका मूल्यांकन किया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि प्रिंसिपल महोदय ने और यहाँ के अन्य अध्यापक गण ने अपने कॉलेज के अर्थ को समझने की कोशिश की है, उस अर्थवत्ता को समझने की कोशिश की है और उसके साथ साथ इस कॉलेज की जो चिंतन बीज है उस चिंतन बीज को प्रकाश में लाने का पता है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं भी कुछ अरविंद घोष जी के प्रति अपने उद्गार प्रस्तुत कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। Thank you so much, sir. You have really added new aspects of Sri Aurobindo's philosophy to our knowledge base. Your talk has really enlightened us. Now moving with the session, we look forward to the keynote speaker of the day. I request Professor Nandita Singh to kindly enlighten us with her wisdom. Thank you, Manpreet ji. Very good afternoon and happy Independence Day. Many congratulations to the college for celebrating this 150th birth celebration, centenary 150th celebration, year celebration of the birth of Shri Aurobindo ji. It's a great honor. It's a great honor to be associated with a person of his stature. You know, the name, as you said, has come from the devotion of your मैनेजमेंट टुवर्ड्स श्री औरोबिंदो। आपने बताया कि ओसवाल जैन जो हैं यहाँ पर, जो आपके शुरू में आपने बताया, वो उनकी डिवोशन है टुवर्ड्स औरोबिंदो जी, जिसके कारण ये नाम आया है। और ये डिवोशन, ये कमिटमेंट एक नाम से नहीं, एक पूरी की पूरी चिंतन से है। जैसे आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव हर्ड the Chancellor of Central University of Himachal Pradesh, Professor Harmohinder Singh Ji Bedi. His discourse was so wonderful, so exhaustive. In fact, he touched upon all aspects of Shri Aurobindo Ji's personality.
उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है आज के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे लिटरेचर में, लैंग्वेजेस में, नेशनल मूवमेंट में, इसके बारे में इतने सुंदर तरीके से व्याख्यान किया है और बहुत आनंद आया और बहुत सारी चीजें नई पता चली, बहुत नई चीजें सुनने को मिली. सो आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड आई एम थैंकफुल टू यू, टू द ऑर्गेनाइजर्स. मैं इसमें कुछ थोड़ी चीजें जो मुझे समझ आ रही हैं वो ऐड करूंगी. सबसे पहले जैसे कमलजीत जी ने कहा था कि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे स्वामी विवेकानंद जी पे एक उद्बोध देते हुए सुना था, तो उन्होंने कहा कि उसी प्रकार से औरोबिंदु जी की भी जो चिंतन है वो है. तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी, जो कि बेदी जी ने भी अभी कहा, कि औरोबिंदु, महर्षि औरोबिंदु जो थे, he was quite influenced by Swami Vivekananda's philosophy. It was during the time when he was in solitary imprisonment. He heard the voice. Heard the voice मतलब कि कहीं उनके आत्मचिंतन के अंदर स्वामी विवेकानंद इतने आ गए थे कि उनको अनुभूति हुई कि स्वामी विवेकानंद उनसे कह रहे हैं, और उन्हें स्वामी विवेकानंद के जो व्याख्यान थे, स्वामी विवेकानंद की जो थॉट्स थी, वो थॉट्स जो थी उन्होंने इम्प्रेस किया, और इसके साथ साथ भगवान कृष्ण जो हैं उनकी थॉट्स ने उनको इम्प्रेस किया. और इसीलिए एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला बालक, जो कि 7 वर्ष की आयु में इंग्लैंड चले गए थे, विदेशी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, आईसीएस की तैयारी की उन्होंने, और 11th रैंक जो कहते हैं कि आईसीएस में उनका आया, लेकिन वो आगे इंटरेस्टेड नहीं थे उसे परस्यू करने में, और इसलिए उन्होंने उसे छोड़ करके वो भारत वापस आए. यहाँ आकर बड़ौदा में उन्होंने बड़ौदा सिविल सर्विसेज ज्वाइन की, और जो वहाँ के महाराजा थे उनके साथ मिलकर के काम किया, और वो नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ गए. और जब वो नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े, और जैसे मैंने कहा कि वो उनको जब उन्होंने लिखना शुरू किया, और उनकी जो वंदे मातरम जो जर्नल उन्होंने निकाला, उसकी चर्चा जब चारों तरफ होने लगी तो अंग्रेज डर गए, और उन्होंने उनको जो एक इंसिडेंट था जिसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के केस के अंदर उनको जेल में भेज दिया. लेकिन ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उनकी हुई, उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के दौरान उन्होंने चिंतन किया, और उस चिंतन के द्वारा वो उनके जो जीवन का रुख ही बदल गया, और उन्होंने अपने जीवन को एक मोड़ दे दिया, जिसमें वो योग की तरफ अपने जीवन को उन्होंने योग की तरफ ले गए, और वो औरबिंदु आश्रम पहुंच गए. तो वो इसलिए थे पौंडीचेरी, क्योंकि एक ये ऐसी कॉलोनी थी जहाँ पे जाकर वो उनका बचाव हो सकता था. लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें पता चला, वहां जब वो आश्रम में गए, जैसे प्रोफेसर बेदी ने कहा, वहां जाने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि किस प्रकार उनका जो जीवन था वो एक नए रुख की तरफ जाने वाला था, जहाँ पर उन्होंने इंटेग्रल योग जिसे हम जहाँ जैसे स्वामी विवेकानंद ने राजयोग की बात की है, उन्होंने भक्ति योग की बात की, ज्ञान योग की बात की, यहाँ पर औरोबिंदु जी ने उसी को सबको समाहित करके एक इंटेग्रल योग जो था वो और उसकी बात की. और उन्होंने कहा कि साधना, डिसिप्लिन इन योर लाइफ, कि साइलेंस और साधना ये कितनी आवश्यक है. मेडिटेशन, प्रेयर, इनके बारे में बताया कि किस प्रकार जो हमारे भीतर दिव्यता है, उस दिव्यता को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम अपने आप को भी जान पाते हैं, और अपने आसपास जो चीजें हैं उनको भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी नेशनल मूवमेंट में, एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि उन्होंने अखंड भारत के बारे में सोचा, एक अखंडता, और उन्होंने भारत को एक ऑर्गेनिक होल की तरह देखा. और उन्होंने कहा कि जो माँ दुर्गा की तरह का स्वरूप उन्होंने भारत में देखा, और उन्होंने कहा कि भारत जो है उसे अखंड रखा जाए, और इस अखंडता के लिए हमें सब लोगों को इकट्ठे होना होगा. और उन्होंने जो सबसे पहली नेसेसिटी कही कि सबसे पहली जो जरूरत है वो ब्रदरहुड है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रदरहुड, हम सबको इकट्ठे होना है. और उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेटर्निटी है ये लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए बेसिस बनेगी.
जो फ्रेंच मॉडल था, ही वॉज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। जो फ्रेंच मॉडल उन्होंने कहा कि लिबर्टी और इक्वालिटी का है, वो जो फ्रेंच मॉडल है उसमें जो ब्रदरहुड है वो बाद में आता है, इट इज एट द टिप ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन इक्वालिटी और लिबर्टी वो नीचे आती है। इन्होंने उस ट्राइंगल को रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि जब ब्रदरहुड होगा, और ये ब्रदरहुड कहाँ से आएगा, यहाँ पे इन्होंने वेदांतिक फिलॉसफी को लेकर आए। और वेदांतिक फिलॉसफी जिसमें स्वामी विवेकानंद बात करते हैं कि हमें हर व्यक्ति में, जब तक हम हर व्यक्ति में एक आत्मा को नहीं देखेंगे, एक आत्मा, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी कि टू बी एबल टू सी oneself इन अदर्स, और नर नारायण, अगर आप नारायण की सेवा करना चाहते हैं तो आपको उस नारायण के बनाए हुए व्यक्ति जो हैं उनकी सेवा करनी होगी। तो यहाँ जब हम ब्रदरहुड, जब ऑर्गेनाइज्ड ब्रदरहुड की बात करेंगे, तब उन्होंने कहा कि लॉन्ग लास्टिंग लिबर्टी और इक्वालिटी। तो ये जितने भी हमने आपस जो भेद हमने क्रिएट कर लिए हैं, भेदभाव बना लिए हैं कास्ट के बेस पे, रीजनलिज्म, लैंग्वेज, जो भी हमने अपने आप को अलगाववाद की तरफ हम लेकर जा रहे, उन्होंने कहा इससे कभी भी ट्रू फ्रीडम विल कम। और आज हम जब फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा फ्रीडम तब सही मायने में फ्रीडम तब आएगा जब हम इस अखंडता, जब हम एक ऐसा देश बना पाएंगे जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, वो किसी प्रकार से अलग नहीं होंगे, और आपस में एक ऑर्गेनिक होल की तरह, ऑर्गेनिक होल जैसे कि एक पूरा एक शरीर है, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और वो सब मिलकर के एक शरीर को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से हमें सबको मिलकर के अपने देश के लिए, देश के प्रति समर्पित होना होगा। और इसमें कंपटीशन, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, that promotes competition, whereas he said कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो कोऑपरेशन की तरफ हमें लेकर जाए, ब्रदरहुड की तरफ हमें लेके जाए, तभी हम एक ग्रेट पावर, एक बड़ा ग्रेट नेशन बन सकते हैं, और ग्रेट पावर बन पाएंगे, और तभी हम जो हायर एम्स ऑफ लाइफ हैं, हायर एम्स फॉर द नेशन है, उनको अचीव कर पाएंगे। He was a great poet, a great saint, a great yogi, and a great nationalist. जो अपने अंदर की दिव्यता को जानना और उसी दिव्यता को दूसरों में देखना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और वही ब्रह्म सबके भीतर है, इसको जानना। इसके लिए उन्होंने कहा कि उपनिषदों में ये ज्ञान दिया हुआ है, हमारे वेदांत में ये ज्ञान दिया है, तो उपनिषदों को पढ़ना। और आजकल मैं जैसे मांडुक्य उपनिषद पे लेक्चर्स दे रही हूँ, तो मैं उसमें देख रही हूँ कि किस तरह से ओम की व्याख्या है, उसमें ब्रह्म की व्याख्या है, और ब्रह्म में भी उन्होंने किस तरह से जो अवस्थाएं हैं, जो हमारी आत्मा की अवस्थाएं हैं, उसमें जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, इनको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। जब हम ये सब स्टूडेंट्स तक लेकर जाएंगे, इस प्रकार की विद्या जिससे हमने अभी तक उनको वंचित रखा है, और ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि उपनिषदों में भरा हुआ ज्ञान जब हम बिखेर देंगे, उनको सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में लोगों तक पहुंचाएंगे, और यही काम औरबिंदु जी ने, महर्षि औरबिंदु जी ने किया कि उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया इन सब स्क्रिप्चर्स का, और इनको सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है इतनी डीप है कि जो उनकी डिसाइपल थी, जिनको हम द मदर कहते हैं, फ्रेंच लेडी थी जो उनकी डिसाइपल थी। सो द मदर ऑल्सो सेज दैट इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड औरबिंदु। शी सेज, आई हैव लिव्ड ऑल माई लाइफ विद हिम and I have dedicated myself to him. Still, I have been able to understand only little part of his philosophy. तो अगर वो कहती है ऐसा कि मैं बहुत कम समझ पाई हूँ, इतनी डीप फिलॉसफी है साइकोलॉजी के लेवल पे, जैसे बेदी जी ने कहा कि he was not only a philosopher, he was also a psychologist. He understood human mind and he explains human mind and how human mind, जो मन और अहंकार और जो बुद्धि है और चित्त, इनको समझना जरूरी है, और किस प्रकार इनको हमने महत जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसकी तरफ लेकर जाना है। तो ये सब इसके लिए उन्होंने कहा कि माइंडफुलनेस, जो आप जो कार्य भी कर रहे हैं उसके अंदर आप में टोटल अवेयरनेस होनी चाहिए,
और किस तरह से आप एक साइलेंस का जीवन जिसमें मेडिटेशन है, प्रेयर है और आप डिवाइन के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपने आप को एक सुपात्र बना लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं उस डिविनिटी के साथ जुड़ने के लिए। और जब आप उस डिविनिटी के साथ जुड़ते हैं तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब होने लगता है। और महर्षि अरबिंदो ने ये कहा था कि 15 अगस्त मेरे जन्मदिन के दिन ये देश आजाद होगा, और उसी दिन ये देश आजाद हुआ। और बहुत योग साधना थी उनकी, अध्यात्म चिंतन था, और जिसे कहते हैं कि बहुत ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे वो, और नेशनल मूवमेंट के साथ, नेशनल थॉट के साथ, देश के साथ। और उन्होंने अपनी साधना से, तपस्या से देश को एक ऐसे उस पे लाए जहां पर देश आजाद हुआ। और उसी को अगर हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, जैसा कि आप, इस कॉलेज का नाम है और कॉलेज के विद्यार्थी जो है उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब उनके बताए हुए जो वो हैं मार्गदर्शन पे अगर आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। So respect for culture is very important. You respect your own culture, work for the unity of the nation, work for, you devote your life to the welfare of people of the nation, and you have to remain united. Try to do, maintain your calm, your balance, and be more tolerant, accepting of others. Don't be afraid of anything. Try, he said that courage is very important. It's a courageous person, who can admit his own mistakes. So be courageous, admit your own mistakes. There are flaws, but you should be moving forward and, taking a vow that I will not, whatever faults I have done, I will not do those again. इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से। और जो सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोलिंग योर ओन सेल्फ, यहाँ पर वो रामकृष्ण परमहंस जी को कोट करते हैं और कहते हैं कि अगर हम he says that controlling oneself is very important. अगर डिजायर्स हम पूरे फुलफिल कर भी लें तब भी हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी सेटिस्फेक्शन हमें अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल करने पर मिलेगी. So that, self-control, he's talking about exercising self-control. और फिर सत्संग की बात करते हैं कि अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत आवश्यक है. अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप अच्छी आदतें, अच्छी चीजें सीखेंगे. So these are some of the lessons which I would, want students to read about, to know more about his philosophy, his thinking, and to be inspired by his thinking and to, inculcate all those values in themselves. So this is my only suggestion. The college is doing a great work, as the principal is telling us, that students are already, working on these ideas. So it's a wonderful thing. And I wish all the best to the college on this 150th year celebration of Shri Aurobindo Ji and on the 75th celebration of our Independence Day. May our country progress. May each and every human being in this country progress. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. Being a creator yourself, from being a piece of creation through mindfulness, awareness, such a wonderful thought by Shri Aurobindo. He was seriously, wonderful philosopher who was able to get charge over the mind, which is, I think, our whole journey is all about. So we are really thankful to you, ma'am. Sade Punjabi Gurbani ch bhi yahi kiya jata hai, man jeete jagdi. So you have really enlightened us with the wisdom or with your knowledge about Shri Aurobindo's philosophy. We are really thankful to you. So proceeding with the session. एक सेकेंड और एक कहना चाहूंगी. जैसे आपने पंजाबी में कहा तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा. So let us get absorbed in the colors of independence, colors of freedom, the saffron, white and green. Saffron for sacrifice, white for purity, and green for prosperity, progress. So let us
get immersed in these colors and make this nation one, unite this nation. So now I would request Professor Kanwaljit to extend a vote of thanks to the worthy guest. Thank you, Dr. Mantri. Respected Chancellor Sir, Professor H.S. Bedi ji, Professor Nanda ji, Dr. Nirmal Jodha ji. It is an important occasion that we are celebrating 75 years of India's independence, Bharat Ka Amrit Mahotsav, and 150th birth anniversary of Shri Aurobindo ji. In collaboration with Department of Youth Welfare, Punjab University, Chandigarh, to celebrate this occasion, the college has taken a great initiative by inviting the guests, who are a wonderful speaker, to enlighten us with the philosophy of Shri Aurobindo ji, which is very much relevant in the recent times. It must be inculcated in the current education system for the youth of nation, so that our nation can develop. I'm thankful to the college management for allowing us for organizing such an event, and I really thankful to Chancellor Sir H.S. Bedi ji and our keynote speaker Professor Nanda ji, that they have given us a time from their busy schedule, because today Chancellor Sir is also very much busy because उनकी कुछ ना कुछ meetings हैं जो higher official central governments के साथ, and even Nanda मैम कि उन्होंने such a short time के ऊपर हमें allow किया और हमारे college के लिए भी time निकाला, because वो अपने personal commitments पे भी कहीं ना कहीं पे बहुत busy हैं. और मैंने थोड़े दिन पहले youth camp, पंजाब यूनिवर्सिटी youth camp जो था उसके अंदर नाम को सुना था, and I requested our principal and the college management कि आप मुझे allow करो कि इस occasion पे मैं नंदा मैम को ही invite करूँ. So very much thank you, ma'am, for your kind words, and thank you, sir, for giving us a time. But whenever the situation allows us, so kindly आप अगर college के अंदर, because due to the pandemic हम लोग ये event online ही करा सकते थे, offline नहीं करा सकते थे. But जब कभी भी situation allow करता है, तो I request sir also and ma'am also that to kindly visit our campus, and क्योंकि offline mode के अंदर जब आप बच्चों से interact करते हैं और उनकी queries जो होती हैं, उनकी curiosity जो होती है, because these are the things which we require. और कल इवनिंग में जब मेरी सर से बात हो रही थी एक बार, तो सर ने मुझे भी ये बताया that कि इन द हायर लेवल कि जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों पे हम श्री अरबिंदो फिलॉसफी के साथ रिलेट करके आगे आने वाले टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में भी इन चीजों को जगह देने लगे हैं. और सर की अपनी खुद की एक आउथर बुक है जो कि पंजाबी लैंग्वेज में है, दैट इज अ महान दार्शनिक श्री अरबिंदो, एंड इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज, मतलब ग्रेट ऑनर फॉर अस कि सर हम भी उसी आश्रम के साथ, श्री अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी है जहाँ से सबको ऑनर भी किया गया. तो और ही इज एन ओनली पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड कि जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में उस चीज को कन्वर्ट किया था. एंड मैं सबकी नॉलेज के लिए बताऊं कि सर ने हमें इवन इनवाइट भी किया कि अगर हम लोग भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, सो ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस and even allow the financial support to our college as well for this particular thing, because sir is also on the board of ICSSR, तो उसके बोर्ड के ऊपर भी सर है. So I request to sir and ma'am as well कि जब कभी भी हम सिचुएशन अलाउ करती हैं तो हम लोग आपको इनवाइट करेंगे अपने कॉलेज कैंपस में, and do visit with us and for the such an event. और हम मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम फर्दर आगे फ्यूचर में इस टॉक्स को बढ़ा सकें, बिकॉज इट्स अ 150th एनिवर्सरी, तो हम सारा साल इस चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं. So thank you, and it is really a great honor for me that it's a privilege to me to extend a formal vote of thanks to sir as well as ma'am. And last but not the least, I thank Dr. Nirmal Jodha ji, Director Youth Welfare, Punjab University, Chandigarh, that he is always being a supporter. Without his support, that I think so it is not possible for us to organize such event. And he is always and personally, in fact, to me, like a younger brother, he always guided me in this field at how to organize and further. And he has been able enough that कि उन्होंने हमें हमारे लिए सर से भी और मैम से भी स्पेशली टाइम दिया, because 15th August we always know that it's a very much busy schedule for all, for Chancellor sir as well as ma'am also. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.
Mantra ma'am, आप unmute कर लो. So sorry. I request everyone, before starting off, let's have a photograph with our worthy guest of the day. So please switch on your cameras so that we can have a photograph with sir and ma'am. Everyone, please switch on your cameras. I think Nandita ma'am has left. She's not visible. Yes, ma'am. Now I'm going to click. Okay. Thank you, everyone. Thank you, everyone. I would request everyone to kindly stand up as a token of respect for the national anthem. I would request Professor Vijay Chhabra to kindly play a national anthem. ये सब वॉइस का इशू है. Thank you, Vijay sir. Thank you, everyone, for being with us, and a very, very happy Independence Day to everyone. Thank you so much.